Okay. Now, the second thing is whenever I will speak, whenever I will sort of use some new terms, I will try and write them down in the chat box so that you guys can look into the word, get its meaning, and always try and make a sentence out of it. Right? There are a few things that I would set as ground rules, and this is something which will help you guys to learn better and be better in terms of using better English. Right? So, as I was asking Harsh, what is the pedagogy that you guys use? So, when I say pedagogy, what it actually means is that what is the flow or the method that you take up, or what is the the way you carry forward your business. So, Flow in order, revenue generation का process क्या है, and what is the sales pitch or sales work method? How do you reach out to your clients? Is there a cold calling involved, or is it through snowballing? Right. So okay. the term called snowballing. Somebody who knows the meaning of the term snowballing? Anyone? Nahin? Okay. So snowballing and cold calling, these are two opposites. Right? Cold calling समझ में आता है? Anyone who understands cold calling? Please feel Yes. free to unmute and talk. Anybody who has an answer, please feel free, because this is a session where I would want everyone to speak up. Yeah. Yes, sir. Tell me. हाँ सर, स्नो कॉलिंग यानी हम जब कोई भी कॉल सेंटर्स या वो सारे होते हैं वहां पर जो स्नो कॉलिंग कॉलिंग होती है वो. Yeah, cold calling. So that's cold calling. So cold calling is a call where you get some number or some information, but you don't know the person whom you're calling, right? So it's like a Yes. cold call. You don't know who the person is, whether he's our target audience or not, whether he's somebody who will be interested in the conversation or not, right? So that's what cold calling is. And snowballing is more like you're talking to people who know the person to whom you're finally going to talk to. So let's say if I met Harsh through, let's say, Aman, so I snowballed to Harsh via Aman. Right? So it's like a link, it's a chain, it's a network that goes on where you get in touch with some other person, with somebody, through somebody who's a known to you. Right? Okay. So, and this term comes because what happens whenever, let's say, there is a rolling stone in the snow, right? You throw a stone in the snow where there is a lot of snow happening or snow falling, and there is so much of snow on the ground. As it will roll down, it will keep on piling up snow on it. So the ball will keep on rolling, and it will get on piling up like a snow, right? So that is how the network also works. So one person whom you know, you get in touch with that person. That person lets you get in touch with the other person, and that person again lets you know in touch with the other person. So like a snowball, it gets on piling up. That's why the term snowballing, right? And pedagogy is like the method adopted to do a particular way, or there's a particular way to achieve something. That is called as a, so there could be a teaching pedagogy, there could be a selling pedagogy, there could be manufacturing pedagogy. A lot of these terms are used in the commercial and the business sector. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So now, my question is, generally, how do you reach out to your clients or your end customers? What is the process involved? ओके सर, इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले हम जो हमारे YouTube की चैनल है जी, उसमें हम हमारे जो भी वेबिनार्स होते हैं उसके लिए हम रजिस्ट्रेशंस रखते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कंपलसरी है. Okay. So from that we get the customer name, from we get a general background from what are the preferences and what are the types of customer we get. Okay. That the doctors and teachers as said earlier. Okay. From that उसमें सर हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन जो भी आते हैं हमारे जो भी नंबर्स आते हैं उसमें हम कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी कस्टमर के लिए कंपलसरी होता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको कंपलसरी अपना फोन नंबर और वो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है. Okay. फिर उसके बाद हमारी ये जो सेल्स टीम है उस नंबर पर व्हाट्सएप करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ जनरल मैसेज, हाय सर मैम, दिस इज हर्ष इंडोचा फ्रॉम माइंडसेलो, from the sales department from Mindcello. You had applied for our course, so share so if you are interested in our course, so can I share the details? And and then the chat continues, and if they say that yes they are interested,
and he or she says that yes, we are interested for the course, and we share the further details of the course, the relationship course or yoga course or whichever type of the course is that. Understood. फिर उसके बाद वो पेमेंट करते हैं या जो भी उनके बाद फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो रिप्लाई नहीं देते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स भी मिलते हैं। हमारी जो मार्केटिंग मेथड है कि उनके पास पहले हम यूट्यूब के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उसके बाद हम व्हाट्सएप की हमारी जो रेवेन्यू, हमारी जो सेल्स टीम है 5-6 लोगों की, वो उसको कन्वर्ट करती है रेवेन्यू में। तो उसको हम पहले ये नंबर आ जाते हैं हमारे पास, फिर हम जो नंबर्स हैं उनके ऊपर हम व्हाट्सएप पर मैसेजेस छोड़ते हैं, फिर हम कई बार हम कॉल्स भी करते हैं ताकि हम उनको पूरा कोर्स के बारे में डिटेल्स दे सके, और फिर हम उसके बाद उनके वहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। Okay, fine. So I see there are 2 to 3 touch points. Again, this is again a very formal word which we use in our business communication. Touch points. Touch points are nothing but the like, for example, for you the touch points are webinars, then WhatsApp messaging, then over the call conversion, and finally getting revenue, right? Yes. So your touch points are webinars, WhatsApp, and calling. Right. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। Yeah. जो हमारे जितने भी यूट्यूब के लिए रजिस्ट्रेशन आते हैं, वहीं से हमारे व्हाट्सएप के लिए भी और Exactly, वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊं तो सबसे पहले वेबिनार आएगा, that is one point of action. Touch point means the areas or the points where you can do some action to get some result, right? That is what a touch point means. So webinar is a touch point where you share webinar on different portals, and that's when people start registering in and they attend your webinars. In the webinars, you tell them about your company, whatever you do, and about the courses that you offer. After that, while registering, you get a lot of information about the name and the phone number and the details of the customer. From there, you move to the next touch point, which is the WhatsApp, where you reach out to them, ask them, how is it like, how did you like the webinar? Are you interested in taking any course and things like that? If somebody gets converted there or somebody shows interest there, from there you move to the next touch point, which is your calling. So you get in touch over a call, try to tell them the details of the course, whatever is on offer, what is the pros and cons, the positives and the benefits. And there you then tell them to pay for the course, like whatever is the fees there, right? Yes. And that's where finally you register your revenue. That is the whole process. Perfect. Okay, great. For webinars, I think you are reaching out to a lot of WhatsApp groups and social media, your own pages and all of that, correct? Yes, sir. We have around 7 to 8 volunteers who manage all our social media content and all WhatsApp groups and all that. Very nice. Okay, fine. Okay, so in all of this process, again, now this is a very open question to everyone. यहाँ ये question सबके लिए है, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि यार ये पूरा जो process है, right from जो हम webinar set करते हैं to the end point where we convert the customer for the courses or the services that we have to offer, इस पूरे process में सबसे ज़्यादा किस चीज पे effort लगता है? मतलब what is it that you are doing in throughout this process? आप कर क्या रहे हो? कोई भी सबसे ज्यादा एफर्ट सर, मतलब फर्स्ट बार कन्वर्ट होने, मतलब किसी तरह से कनेक्ट हम उससे कर पाए, वहां पे सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। मतलब जैसे बात करने के लिए लोग पहली बार कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उनको किसी तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बार ही नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। हाँ जी, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ शिवम, बोलो। यस सर, आई एम ऑडिबल सर? यस, यू आर ऑडिबल सर। पहले तो जिस तरह हम लोग अपना वेबिनार कंडक्ट करवाते हैं यूट्यूब में जी, उससे जैसे कस्टमर के लिए वो सर डेमो की तरह हो जाता है। अगर सर कस्टमर को सर उससे बेनिफिट होता है, वो अप्लाई करते हैं कि उनको ठीक लगता है सर, तो वो ऑब्वियसली सर आराम से कोर्स ले लेंगे हम हमारा। यही सर मेन फोकस रहता है, पहले उनको सर बताएं हमारे उसमें क्या चल रहा है, हमारे क्या प्रोग्राम है और किस तरह हम सर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर को सर। बिल्कुल। ओके, ठीक है। और जब आप ये पहली बार जैसे रीच आउट करते हो, चाहे आपके जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, ओके, अच्छा, एक काम हो सकता है यार, कैन ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास एज वेल इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज
दैट जस्ट मेक्स द एंगेजमेंट बेटर। मतलब बातचीत करने में लगेगा कि हाँ यार सामने बैठ के बात कर रहे हैं, थोड़ा वो फील आ जाता है, वरना लगता है कि मैं फोटो से और केवल टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, मजा नहीं आती बात करने में। चलो, हाय शिवम, बढ़िया यार, सामने देख करके बात करने का थोड़ा हेलो अलग सर। मजा है। ओके, सही है, सही है प्रशांत, आई कैन सी यू। जस्ट श्योर श्योर हर्ष, राइट राइट। सो जब आप क्या कहते हैं, जो आप जब ये वेबिनार के लिए जो एक स्प्रेड करते हो, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड यू यूज द मेथोडोलॉजी व्हिच इज नोन एज वर्ड ऑफ माउथ। ये टर्म सुना है कभी यार? जरा बातचीत फैला देना, बता देना, मैंने तेरे को शेयर किया है, तुम 4 लोगों को आगे और शेयर करना, राइट? दैट इज व्हाट वी डू, है ना? आपने अपने सर्कल में शेयर करा, उन सर्कल ने कहीं आगे शेयर करा, ठीक है? सो स्नो बॉलिंग और वर्ड ऑफ माउथ जो है, ये दोनों ही क्या कहते हैं टर्म्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने से होता क्या है कि सामने वाला जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, उसे ये समझ में आता है कि हाँ आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो, यू आर यूजिंग बिजनेस रिलेटेड टर्म्स जो कि एक कॉर्पोरेट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? So something like you can say, yeah, please spread the word of mouth for this webinar. Please spread the message. Maybe you can say like this: please spread the message for the webinar. Yeah, फिर what you can say is, let us spread the word of mouth for the session, for the webinar, whatever. ठीक है? राइट। सो यू ट्राई यूजिंग दीज वर्ड्स, क्योंकि होता क्या है ना, वो डिपेंड करेगा सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस तरीके का है। मान लो तुमने किसी ऐसे क्लाइंट से या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करी जो कि तुम्हें पता है कि एक अच्छी कॉर्पोरेट में है, एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट में है, तुम्हें पता है उसका बैकग्राउंड है ऐसा, तो उसके सामने अगर इस तरह के इफेक्टिव वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है, इवन इन योर पिच, आई एम श्योर कुछ लोग आपसे पूछते भी होंगे, यार कैसे ऑपरेट करते हो, ये वेबिनार में करते क्या हो, या कैसे रीच आउट करते हो लोगों को। कस्टमर्स या क्लाइंट्स आपसे खुद भी ये सवाल पूछते होंगे, ठीक है? तो उस टाइम पे इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए भी आप ये तरीके के वर्ड यूज करते हैं। सर, व्हाट वी डू इज वी बिलीव इन स्नो बॉलिंग, सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ चेन ऑफ वॉलंटियर्स who reach out to different people, and then we ask those people to help us reach out to many more. So there's a lot of snowballing involved here. We also do cold calling, wherein we get some database from somewhere and we sort of buy database from somewhere and we cold call and reach out to our target audience. So there is another term which is known as target audience. Use these words. Now what will happen if you will start using these words? इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने से बस फायदा ये होगा कि आप जो है एक बेटर और इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है? What I can suggest, Harsh, is we can create a separate group of Mindcello plus Be Better, and these guys can practice these pitches and send me audio snippets so that I can give feedback whether they're using the words correctly or not. So you should be the coordinator for that one, right? And make all these sales people join, make all your HR people or any other, like anyone from Mindcello who wants to be a part of it, they can join in and they can practice their speeches, they can practice their pitches and send me audio notes and I will give feedback on those. Yeah? Sure, we'll do that. Let's do that. Right. Okay. Right. Sorry, so, yeah, Harsh. एक और मेथड है जहाँ से हम रीच आउट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनको हम वेबिनार के थ्रू हम रजिस्टर नहीं करते। हम कोई भी जनरल डेटाबेस ले लिया, वहां से हम वहां पर हम उनको वेबिनार के बारे में वहां से हमने नंबर्स कलेक्ट कर लिए और हम सेल्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं और वहां से वो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू वो वहां से बात करते हैं। Right. That happens. So that's what I said. In my example also, I said I take up database, we buy database, right? So I know I've been associated with a business process outsourcing, so a BPO lately. So I have a bit of an idea as to what goes into collecting or getting in touch with people. So yeah, that's that. So try and use these words. This is something which will make your pitch more, and it again, you have to be very careful. अगर cold calling कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पता सामने वाला बंदा कैसा है, ठीक है? कहीं जैसे हर्ष बता रहा है कि हम कहीं से डेटाबेस उठा लेते हैं, वो डेटाबेस की क्या क्वालिटी है या किस तरह के लोग हैं इसमें, वो हमें केवल एक वेग आइडिया होता है, राइट?
Again, I've used a word called vague. Any idea what is this term? Vague. VAGUE. कभी सुना है? Okay. Vague means जो कोई क्लियर ना हो, जिसमें कंफ्यूजन हो. मतलब तुमने कहीं से डेटाबेस खरीदा, तुम्हें वेगली पता है या देयर इज अ वेग आइडिया कि यार इसमें इस तरह के लोगों के नंबर हैं, जिसने तुम्हें डेटाबेस बेचा है या जहां भी तुमने जहां से भी किसी के थ्रू लिया है, वो तुम्हें बता देगा कि यार इसमें इस एज बैंड से इस एज बैंड तक के लोग हैं और ये इस तरह का प्रोफाइल के लोग हैं, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली कि हर बंदा कैसा है. ठीक है. सो इन दैट केस इट इज ऑलवेज गुड टू रीच आउट विद अ गुड vocabulary and a good corporate approach, because you never know सामने वाला बंदा अगर किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, किसी इंडस्ट्री का पार्ट है, सो ही विल ऑलवेज गेट अ वेरी गुड इंप्रेशन देयर, राइट. सो मैं एक बात बड़ा क्लियर करके बता देता हूं कि सेल्स में, पिच में, इट इज ऑल अबाउट द इंप्रेशन. ठीक है ना. बंदे के दिमाग में जो पहला इंप्रेशन आपका बैठ गया, दैट इज इट. ठीक है. वो बात तो उसके बाद चालू होगी सारी. It is all about making that first impression, and agar if with right choice of words you can make the right impression, that is a fact. That is a fact. You can search Google, you can search anywhere, people will tell you that if you are able to use the right words, you will be able to create the right impression. And if that impression is correct, and if that impression is just what you really want to create, then the result will be in your favor for sure. राइट. सो इसलिए मैं ये जो भी ये शब्द लिख रहा हूँ, जो भी ये बातचीत कह रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, इसको काफी सीरियसली लीजिएगा, इसको एक्चुअली में प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से शब्द को पढ़ करके कौन इंप्रेस हो जाए और कौन आपके साथ एंगेज करने के लिए रेडी हो जाए, राइट. So what I can also do is if you have certain pitches, Harsh, if you have certain scripts, certain pitches which these guys use, you can share those pitches or scripts in that group that you will make, and I will just try and go through them and make them better. Yeah, if I can give you better words to use there, or maybe create an impactful introduction or things like that, I will try to do that as well. Yes, Harsh, tell me. सर हमारे पास पहले से एक स्क्रिप्ट होती है. हम कोई भी लोगों को डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं. सो ऑन एन एवरेज सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको तो हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक टाइम फ्रॉम देम. सो हम पहले व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करते हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट है, वो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर इस वेबिनार के बाद, मीटिंग के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा. राइट. हम सर सबसे पहले उनको हेलो, हमारा नाम, फिर हमारी कंपनी का नाम और वो सब कुछ हम शेयर करते हैं. राइट. यस आई एम इंटरेस्टेड, और जो भी उनका रिप्लाई होता है उस हिसाब से हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट होती है. अगर वो बोलते हैं इंटरेस्टेड, फिर हम उनको डिटेल्स भेजते हैं. बिल्कुल. So we can together work on that script as well, right? Yeah, so sure. there is a particular what you can say, there's a scientific way to approach these things. There are things as a human being, मतलब जैसे दिमाग काम करता है ना, उस हिसाब से कहीं जगह पे कहीं शब्द अगर सही तरह से डाल दिया जाए तो वो सही इम्पैक्ट क्रिएट करता है, राइट. So we'll try and do it with a particular science behind it, जो language linguistics बोलते हैं जिसे, another term linguistics is nothing but it is related to language, a science around language. Okay, sure sir. Right. So I hope आप लोग chat भी पढ़ रहे हो साथ साथ, because chat पे मैं सारे words और सारी चीजें डाल रहा हूँ, right? You can look out, ये जितने भी words हैं, I would want you guys to start using these words, इनका मीनिंग देखो. मैंने जो बताया है वो तो है ही, बट रीच आउट, गो टू गूगल, गो टू योर डिक्शनरी ऐप, take these words, take their meanings down and start writing sentences, because ये वो words हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगोगे एज अ कॉर्पोरेट, एज अ marketeer specifically, right? Another term, marketeer. You guys are all marketeers. That's the term for you guys, right? And you guys are also the musketeers. The musketeers are like the people who are very talented and who have some special knack in themselves. The Three Musketeers was a very famous book, right? Okay, fine. So yeah, so ये different जो भी ये तरीके आपने मुझे बताए, I think these are very interesting ways, and I think a very subtle way to start is via WhatsApp. WhatsApp is a very strong medium, right? And then you get into calling, and then from there you get into like telling about the courses and everything. ठीक है.
ठीक है। तो जो मैंने को सबसे पहली जो पॉइंट समझ में आया वो ये आया कि बॉस प्रॉब्लम होती है तब जब आप जैसे वेबिनार के लिए तो आप यू आर जस्ट यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज लाइक योर सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, वहां पर आपका डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रीच इतनी बड़ी, आपका नेटवर्क इतना बड़ा है, एंड देयर इज एन ऑर्गेनिक रीच देयर, राइट? देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक रीच का मतलब, अच्छा, डू यू डू पेड प्रमोशंस एज वेल और इज इट जस्ट थ्रू दिस नेटवर्क ओनली? सर इसमें क्या होता है कि हम हमारे अंदर में सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम काम कर रही है अभी, जो सब्सक्राइबर्स लाती है, फिर फॉलोवर्स लाती है। पेड प्रमोशन हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ऑर्गेनिक रीच के ऊपर ही अभी हम फोकस करें। एग्जैक्टली राइट। सो द टीम पुट्स और गेट्स आउट द कंटेंट, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करते हैं, फिर लोग उसे देखते हैं, रीच आउट करते हैं, ऐसे बात आगे बढ़ती है। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। सो या तो खैर वो तो फिर अलग बात है। तो वहां पर आई थिंक आप लोगों का रोल उतना नहीं होता, एज आई अंडरस्टैंड, राइट? वो जब वहां से आ जाते हैं और लोग वेबिनार में आ जाते हैं, वो वेबिनार में आने के बाद से फिर आप लोगों का रोल शुरू होता है। इज दैट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? यस सर। उसमें क्या, हमारी जितनी भी सोशल मीडिया टीम है वो कहीं से भी रजिस्ट्रेशंस लाती है, जहां से भी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर जी हमारी टीम है वो फिल करती है, और वहां से उनके रजिस्ट्रेशन आते हैं, फिर हम उनको कांटेक्ट करते हैं कि हम माइंडसेलो से, और आप सबको प्रोसेस हम शेयर करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ठीक है, आई विल देन फोकस मोर ऑन कि जो लोग वेबिनार में आ चुके हैं एंड यू हैव गॉटन देयर नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड यू आर रीचिंग आउट टू देम वाया व्हाट्सएप, ठीक है? ओके। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर वो वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं। हाँ नहीं, when I'm saying webinar, I am saying those who have registered for it may or may not have attended it, which is fine, which is okay. वो तो होता ही है यार, I know, मतलब conversion ratio, right? That's the term. There's a term called conversion ratio or hit rate, right? So conversion ratio, you can use this term. You can, whenever you're talking to the people post, the webinar, or if there is somebody who has not attended the webinar, you can use the term that, okay, we had so many registrations, and out of these, so many people attended it. So we had a very good conversion ratio and people were really happy when they attended the webinar. So I suggest that you should also go ahead and try our webinar for sure, right? So if you use terms like conversion ratio, so they will know, yeah, you are talking business, you know what you're talking about. मतलब अगर आप ऐसे नॉर्मल बोलोगे कि यार हम we arranged for a webinar and there were so many people who came, they were very happy. So it is like a very general way of saying. But if you're saying that something like a conversion ratio, so if somebody on the other side is from a background which is related to business, or he's a jobber, or somebody like a doctor, they will understand that, okay, you're talking something which is actually very professional. So these words give you a very professional edge over like a general saying that हमने इतने लोगों को रजिस्टर करा था, इसमें से इतने सारे लोग आए, तो बहुत सारे लोग आए थे हमारे वेबिनार में, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग बोलने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। बट इफ यू आर सेइंग समथिंग लाइक वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्जन रेशियो सर, और द हिट रेट फॉर आवर registrations was very high, right? You can write these sentences down. Conversion ratio was very good or the hit rate was high, right? Now that will something which will make them understand, okay, they are actually actively doing it very professionally, right? Okay, fine. So जब आप इनसे बात करते हो, and now this one, Harsh, I would want you to take a back seat. I would want others to answer in this question. When you talk to these persons, first of all, when you reach out to them via WhatsApp, what is the usual responses? Let's keep out the ones which have not responded. There, out of 100, approximately 60 to 70 people will not respond. I'm just saying a very random figure. बट अगर आप 100 लोगों को व्हाट्सएप भेजते हो, जिस वेबिनार के थ्रू अगर आपको किसी का कांटेक्ट मिला, उनमें से आपने 100 लोगों को व्हाट्सएप भेजा, उसमें से 60 से 70 लोग तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है? बचे 30 से 40 लोग जो हैं, वो लोग रिस्पॉन्ड तो करते हैं, लेकिन हाँ ओके करके छोड़ देते हैं। और उसमें से भी 5 या 10 लोग होते हैं जो एक्चुअली में वहां से बात आगे बढ़ती है। अब मुझे बताओ, जो मैंने ये सिनेरियो बोला एक्चुअली ऐसा ही होता है? यस सर, है ना? ऐसे होता है, राइट? सो इन रियलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द कन्वर्जन रेशियो इज ऑलवेज वेरी लो
It is very difficult to get somebody to give two things of their life. One is money, second is time. Nobody is actually willing to give us your time and money, because both these things are very precious, right? And that is why I remember her saying, sir, thank you so much for giving us your valuable time, your precious time. These words really make a difference. These words really create an impact, that yeah, somebody, if I'm giving you some time and you're acknowledging it, so yeah, that's really good, right? ओके सो जब आप मेरे को अब ये जानना है कि जब आप जैसे व्हाट्सएप भेजते हो, पहला स्टेप ये होता है, या अगर आप भेजते हो तो आप, नहीं तो फिर जो भी भेजते हैं आपकी टीम में, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट यू गेट? जो भी रिस्पॉन्ड आता है, किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कोई भी बताएगा? अभी जो 4-5 लोग हैं, इनमें से हर्ष कोई है जो इस टास्क को करता है, सेंडिंग आउट मैसेजेस? कौन करता है? श्योर सर, ये सारे के सारे जो व्हाट्सएप के मार्केटिंग को लीड करते हैं। चलो, और वेरी मैं गुड। रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सारे लोग अपनी क्वेरीज बोलो। ये आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, ये मेरे लिए नहीं है। फिर भी मैं आपके साथ हूं, मैं भी सीख रहा हूं, क्योंकि नहीं चाहिए, क्योंकि एक जगह पर आप नहीं सकते। राइट, एंड एवरीवन इज लर्निंग। सर मैं भी सीख रहा हूं, पता है क्या, मैं भी अगर आप लोग के साथ काम कर रहा हूं ना, तो मैं भी सीख रहा हूं कि यार ये एक तरीका है नया, इसमें मैं कैसे और हेल्प कर सकता हूं, कैसे और मदद कर सकता हूं। सो एवरीवन ऑफ अस इज अ लर्नर हियर राइट नाउ। सो बेझिझक होकर के बोलो, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन इंप्रूव दिस। हाँ जी, हु वुड लाइक टू? तो सारे लोग एक अपनी जो भी क्वेरीज है, क्योंकि हमें पता चले कि आप कहां पर अटक रहे हैं। और जैसे कि एचआर हूं, तो मुझे भी बहुत ही कम पता होता है कि भाई सेलिंग में कहां पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं एचआर हूं तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं होता है सेलिंग के बारे में। बट सर के पास पूरा नॉलेज है। आप बताइए कि आपकी कहां पर गाड़ी अटक रही है, सो उस गाड़ी को हम पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सारे बोलो। परफेक्ट हर्ष, परफेक्ट। ओके, तो शिवम ने हैंड रेस किया हुआ है, शिवम सिंह, या बताओ बॉस। यस सर, पहले तो सर हमारा प्रोसेस रहता है हेलो सर, हेलो मैम। उसके बाद हम अपने कोर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर उसके बाद सर हम लोगों में 100 नंबर मिले रहते हैं, जिसमें से 5 या 6 हमको रिस्पॉन्स मिलता है वापस, और ज्यादातर नॉट इंटरेस्टेड होता है। और फिर हम लोगों को सर ये बताया गया है कि किस तरह अगर उनको अगर और पूछें कि नॉट इंटरेस्टेड है, तो उनको कन्वर्ट करें किस तरह उनके अंदर इंटरेस्ट क्या है। अच्छा। लेकिन सर इस तरह अभी हो नहीं पा रहा है सर। हाँ, ठीक है। करते हैं हम लोग काम, लेकिन वो बोलते हैं, जो डॉक्टर होते हैं तो बोलते हैं हमारी कोविड ड्यूटी लगी है, कोविड में पेशेंट को देखना पड़ता है, ड्यूटी लगी है। तो सर फिर उसके बाद हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि सर अभी डॉक्टर हैं, उनका तो ये आपका जो ये जो पिच होता है, या जो आपका ये व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज भेजते हो, क्या पहला क्वेश्चन तो ये क्या है, जो आपको नंबर मिलते हैं, तो आपको पता होता है कि ये नंबर किसी डॉक्टर का है या किसी और प्रोफाइल का है? क्या उन नंबर्स का प्रोफाइल पता होता है हमें? यस सर, उसमें डॉक्टर लिखा रहता है सर, डॉक्टर वाले में डॉक्टर लिखा रहता है, और नॉर्मल वाले में तो पहली बात तो ये कि हमें प्रोफाइल पता है बंदे का, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आप पिच डालते हो या जो आप व्हाट्सएप मैसेज डालते हो, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, सबको सेम जाता है या सबके लिए अलग अलग जाता है? यस सर, सबको सेम जाता है सर। ओके, सो आई थिंक हर्ष, यू नीड टू मेक अ पॉइंट हियर। द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल डू इज वी विल हैव टू कस्टमाइज द स्क्रिप्ट एज पर द प्रोफाइल। ये जो सर ने बात बोली है ना, बिल्कुल जेन्युइन बात है। जो डॉक्टर कोविड ड्यूटी पे बैठा है ना, वो बैठ करके इन सब चीजों पे अभी ध्यान नहीं देगा बॉस, उसके पास लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम अपनी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा डाल दो जो कि कोविड रिलेटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लेट्स से राइट समथिंग, हाय सर, we are grateful for the service that you've been doing throughout this pandemic, right? Thank you so much for all your efforts. We at Mindcello are trying to engage with doctors like you and talk about the mental health of the frontline warriors of COVID. Would you be interested to give us some of your time regarding that? Now tell me, if there is a doctor who is involved in a COVID situation, who is having so much of tension, so much of pressure on him, and he reads something where he can actually get some help with respect to some releasing of his mental pressure, will he not be more interested now? Whereas let's say we know that somebody else who is a manager in a firm, right, and we write something like, hi sir, I know that work from home can get stressful over a period of time. We at Mindcello are trying to help guys, or we are trying to engage with people who feel the work pressure day in, day out,
and help them release it through some mental wellness activities. Would you be interested to talk to us? Right? So if the message has to be very targeted, that is the first step as a salesperson. Yes. As a sales guy, that you have to ensure it cannot be a general message for everyone, even if it requires to manually do it for 100 people in a day. We shall do that, but the only way to get better results is by giving out targeted messages, right? I'm going to write that term here. Targeted messages is the key, right? So I think I'm also going to make a note of it. We will have to sit and revise the scripts, at least try it for some time. Let's see how it works out. So we have to make targeted scripts. Yeah. So that is first problem. क्योंकि सबको सेम मैसेज जाता है तो सबको सेम तरीके से इम्पैक्ट नहीं करता. ठीक है, जैसी आपकी लिस्ट है, मे बी उससे पहले ना हमें एक स्टेप और करना. जब आपके पास लिस्ट आती है शिवम, या अगर प्रशांत आप बोलना चाहो, आप मुझे सवाल का जवाब दो प्रशांत, कि जब आपके पास उस नंबर्स की लिस्ट आती है तो क्या उसमें कोई फिल्टर लगा होता है कि हाँ यार ये 10 नंबर डॉक्टर्स के हैं, ये 10 नंबर स्टूडेंट्स के हैं, ये 10 नंबर जॉबर्स के हैं या मैनेजर्स के हैं, ऐसा कुछ फिल्टर लगा होता है क्या? या केवल एक एक्सेल शीट आती है उसमें केवल नंबर ही नंबर पड़े होते हैं? सर नंबर ही नंबर रहते हैं सर, नाम रहता है जैसे जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हो या कि उनकी डीपी में कुछ ऐसा वो हो रहा हो, उससे हम लोग वो लगा पाते हैं कि मतलब ये डॉक्टर हो गए. और जैसे कुछ प्रोफेसर्स रहते हैं तो वो आई लव मतलब टीचिंग या आई लव ऐसा कुछ लिखे रहते हैं, तो मतलब जिससे आई लव स्टूडेंट, तो हम लोग ऐसा गेस कर पाते हैं कि ये टीचर होंगे, बहुत बढ़िया, प्रोफेसर्स होंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अगेन अनदर स्टेप अगेन हर्ष टू बी पॉइंटेड out of the task force which is there for selling, 1 or 2 people should dedicatedly sit to sort of put the details, the dialing details in order. They should customize it and have the tabs. So एक Excel में नीचे 4 tabs होने चाहिए: doctors, teachers, corporates, students. लेट्स से ये 4 प्रोफाइल्स हैं, और भी प्रोफाइल्स होती हैं तो और प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हो. बिजनेस हाउसेस, यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो जो भी वेबिनार से नंबर आए. हाँ प्रशांत फिर से बोलो, आवाज करके. प्रशांत एक काम करो, तुम वीडियो ऑफ कर दो, तुम वीडियो ऑफ करके बात करो. रीजन बीइंग कि तुम्हारा नेट हल्का है ना. हाँ अब बोलो. हेलो सर, अभी अपने पास यही 4 प्रोफाइल है जिनके आपने बात. हाँ मुझे पता नहीं था, मैंने तो रैंडमली बोला था. अगर यही 4 है तो बहुत अच्छी बात है, एंड विद टाइम ये बढ़ेंगे, प्रीटी श्योर. ठीक है, लेकिन दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू शुड नो द प्रोफाइल. और टू मेक टास्क इजियर, एक डेडिकेटेड बंदों को या 1 या 2 बंदों को डेडिकेटेडली इस सिलेक्शन छटनी के लिए लगा दो, ताकि जब जो रियल टाइम सेल्स पीपल हैं उनको इस चीज में टाइम ना वेस्ट करना पड़े देखने में यार कि अच्छा ये वाला बंदा, इसको ये वाला मैसेज भेजूं. नहीं, तेरे को पता है यार ये 50-100 नंबर है, 100 में से ये 20 नंबर जो है टीचर्स के हैं, इसके लिए टीचर वाला मैसेज जाना है. एंड आई एम श्योर you will be doing it over through the laptop, right? A lot of you should be using WhatsApp web and copy pasting and sending it out, right? That's the process, correct? Okay, yeah. So let's do that ना. वो जो एफर्ट है जो कि हर एक बंदा इंडिविजुअली कर रहा है कि यार मेरे जो ये 100 नंबर हैं उसमें मैं जा कर देखूं, उससे अच्छा 2 जने केवल यही काम कर लें कि वो छटनी करके आगे भेजें. ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, तो जो वो ऑन द स्पॉट टाइम वेस्ट हो रहा है वो चीज पैरेलली चलती रहेगी और वहां तुम्हारा टाइम बचेगा. यहाँ तुम्हारी छटनी पैरेलली हो रही है, यहाँ तुम्हारी मैसेजिंग चल रही है, चालू है, राइट? सो यू विल सेव टाइम, यू विल बी मोर एफिशिएंट, and you will get very targeted responses as well. So we can sit together, we can come up with the dedicated scripts, targeted scripts, and we can, as and when we will start finding ways कि हाँ यार ये कैसे पता लगाएं कि ये कौन से प्रोफाइल का बंदा है. उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर SOP होना चाहिए. SOP समझ में आता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि भैया क्या पर्पस है, उसको कैसे करना है. ठीक है, या फिर हम बोलते हैं उसे कंप्लायंस ऑर्डर. मैं ये दोनों टर्म्स भी लिख देता हूं.
कंप्लायंस ऑर्डर मतलब कि कैसे किसी चीज को करने का तरीका. अगेन यू कैन यूज द वर्ड pedagogy here as well. We can have a specific pedagogy towards, you know, bifurcating the different profiles. Bifurcating मतलब कि bifurcate करना. Bifurcate मतलब अलग अलग करना. Bifurcate. ठीक है. So let's do that. So we will have somebody who will do the profiling and segmentation. So I'm calling it profiling and segmentation is because basis the profile you will segment them as a different profiles. Profiling and segmentation के लिए we will need at least 1 to 2 people to dedicatedly doing this. Assuming post one webinar you get, how many members do you end up getting? Like let's say if you have a webinar tomorrow, how many new numbers are you expecting to get from after the completion of one webinar, or including those who don't attend the webinar, the number of registrations only? How many are there? सर रजिस्ट्रेशंस के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, बट सर उसमें जहाँ तक हम एक काम कर सकते हैं कि हम जब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन हम जब आज का फ्राइडे सैटरडे संडे में किया है, बट नेक्स्ट वीक में जब हम वेबिनार्स की सीरीज रखे, हम वीक में 5 वेबिनार करते हैं, 5 अलग अलग क्रिएटर्स और वो सब कुछ हमारी टीम वेबिनार की टीम हैंडल करती है. तो इसमें सर हम एक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में एग्जैक्टली करा सकते हैं कि हम उनका जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट करा दे, फिर हम जब गूगल फॉर्म हमारे पास आए तो बाइफरकेट करने के लिए इजी रहता है. एग्जैक्टली वही मैं आई वाज कमिंग टू एग्जैक्टली दिस पॉइंट ओनली कि हाउ टू डू इट. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. Include it in the form that people fill for registration. Ask them their occupation, ask them their designation. ठीक है. और उसके लिए जो भी drop down menu, you understand drop down menu? वो जो arrow से बना होता है, क्लिक करते हैं तो नीचे लिस्ट आ जाती है, बहुत सारे फॉर्म्स में होता है. So create a drop down menu for that. Sure. Right? Ask them to choose. Don't ask them to fill. Nobody has the time to fill. ऑलवेज क्रिएट. एंड अगर आपको पता है कि आपके ये 4-5-6 मेजर प्रोफाइल्स हैं, तो वो 4-5-6 मेजर प्रोफाइल्स नहीं, और उसके बाद नहीं तो अदर्स करके वो अपना अदर्स डाल देगा. ठीक है, वो डाल दो, डेजिग्नेशन डाल दो. ठीक है, सो दैट यू विल हैव दैट सेगमेंटेशन एंड बाइफर्केशन इज ऑलरेडी डन. व्हेन द वेबिनार टीम सेंड्स आउट द नंबर्स एंड नेम्स, you will have that column of the category or the industry and the designation as well. ठीक है, so तुम्हें उसका आइडिया लग जाएगा. and then accordingly what you can also do, and that is something which we can try sometime later, not immediately, कि you can create specialist for particular profile. Let's say Shivam and Prashant, they tackle only doctors. Then Shivanjali and Shivam, they only tackle teachers. So these guys will have a particular kind of expertise or competence कि हाँ यार डॉक्टर्स को मैं हैंडल करता हूँ, मुझे पता है डॉक्टर से कैसी क्वेरी आती है. Now over a period of time मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर्स को कैसे हैंडल करना है. Similarly there are 2 people, मतलब क्रॉस भी कर सकते हैं once in a while, but let's have experts, right? और इंटरनली टीम में भी कभी ऐसा स्नो बॉलिंग से कोई और बंदे का नंबर मिला, अच्छा ये डॉक्टर है, अच्छा इसका नंबर इसको फॉरवर्ड करो. ठीक है, इससे होगा क्या ना कि हर बंदे के लिए एक डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा. मान लो उस बंदे को कुछ पूछना है, या कभी कभी वो भी मान लो पहले कॉल के बाद दूसरे कॉल में उसको कोई क्वेरी है या कुछ है. ठीक है, सो ही विल गेट बैक टू द सेम पर्सन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग एंड in at least in selling. अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप में से कितने लोगों के पास बाइक्स हैं, बाइक्स या स्कूटर्स या इवन कार्स? सबके पास होंगे आई थिंक. बाइक्स और स्कूटर्स तो आजकल सभी के पास होते हैं. आप में से कितने लोग तो खुद जाकर के खरीद के लाए हैं अपनी बाइक? कोई गया है? नहीं गया कोई? सर नहीं गया. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है. जब भी आप किसी शोरूम पे जाते हो या कहीं पे जाकर के कुछ खरीदना होता है या कुछ मन होता है, आप जाते हो वहां पे और वहां पे किसी एक बंदे से बात करते हो. ठीक है, यूजुअली जब आदमी स्कूटर खरीदता है या बाइक खरीदता है या गाड़ी खरीदता है, तो वो ऐसा नहीं होता है कि आज मैं गया, मैंने बात करी, वहीं का वहीं डाउन पेमेंट कर दिया और उठा के ले आया. तो यू गो टू डिफरेंट शोरूम्स, काफ़ी चीज़ें पता करते हो. सिमिलरली अगर कोई माइंड सेलो के बारे में इंटरेस्टेड है तो खाली माइंड सेलो को नहीं देख रहा होगा, माइंड सेलो के कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होंगे मार्केट में,
उनसे भी बात कर रहा होगा, मे बी वो कोर्सेरा पे कोई रेलेवेंट कोर्स देख रहा होगा, मे बी वो यूडमी पे कुछ देख रहा होगा, ठीक है, मे बी वो आर्ट ऑफ लिविंग या उस तरफ भी कुछ देख समझ रहा होगा बिकॉज ऑफ हिज मेंटल वेलनेस एंड ऑल, ठीक है, मे बी ही इज लुकिंग समवेयर इनटू योगा एज वेल कि भैया पतंजलि योगा में क्या होता है, आई वांट टू हैव सम रिलैक्सेशन एंड ऑल, राइट। सो यू विल ऑलवेज हैव कंपटीशन, ठीक है। नाउ अब होता क्या है, जैसे मान लो मैं मान लो होंडा के शोरूम पे गया, मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा यार होंडा सिटी में तो बहुत अच्छी लगी, अच्छा इसके बारे में मुझे बताओ इसमें क्या क्या अच्छा है क्या क्या नहीं है, मैं पता करके चला गया। फिर मैंने Hyundai में भी जाके देखा, मैंने क्या कहते हैं और दूसरे ब्रांड में जाके देखा, लेकिन मुझे सबसे अच्छी होंडा सिटी लगी। मैं वापस आया शोरूम पे, जब मैं वापस आया तो जिस बंदे से मैंने पहली बार बात करी थी वो नहीं था, किसी दूसरे बंदे से बात करी। अब उसने कहानी अपनी बताने लगा वो कि यार अच्छा इसमें तो ये अच्छा ही है, ये अच्छा ही है। मैं कहूँगा यार मैंने जो पिछले बंदे से बात करी थी वो तो कह रहा था कि इस पे इतना पेट्रोल देती है या इतना माइलेज देती है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली इतना है, आप तो मुझे कुछ अलग बता रहे हो। उसने कहा था कि इसके साथ मुझे ये वाली किट फ्री मिलेगी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये किट फ्री मिलेगी। तो मेरा क्या है ना, ब्रांड के ऊपर से ट्रस्ट हिल जाता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली सेम सेल्स पिच दो बंदे नहीं दे सकते, एग्जैक्टली सेम सेल पिच नहीं हो सकती, मतलब दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। सिमिलर हो सकती है लेकिन सेम नहीं हो सकती। और बातचीत करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, किस तरह से आप कनेक्ट कर पाते हो, ये भी सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। और सो वो हर तरीके के लोगों के लिए काम आते हैं। हो सकता है मेरे लिए काम ये आता हो कि बंदा ऐसे बात करे कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताया यार ये चार चीजें अच्छी हैं, ये चार चीजें खराब हैं, अगर मैं इसे कंपटीशन से कंपेयर करूं तो कंपटीशन के साथ ये प्रॉब्लम है, हमारी गाड़ी ऐसे बेटर है, लेकिन हाँ ये दो तीन चीजें हैं जो कि कंपटीशन बेटर देता है मुझे। तो अगर मेरे सामने वो बंदा कंपटीशन की तारीफ भी कर रहा है तो भी वो मेरे लिए इफेक्टिव है, क्योंकि मुझे पता है वो बंदा ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्टवर्दी है और वो सही बात बता रहा है, ठीक है। वेयरएज कोई और बंदा हो उसके लिए ऐसा होगी यार प्रोडक्ट बाद में, पहले ये बता सर्विस कैसी होगी, ठीक है, गाड़ी तो मैं ले लूंगा, मेरे को ये नहीं जानना, मेरे को जानना होंडा का सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ पे है। वो बंदा प्रोडक्ट पे ध्यान न देके वो पहले बात करेगा, वो कहेगा अच्छा सर अगर ऐसा है तो होंडा के शोरूम इस सिटी में इतने हैं, अक्रॉस इंडिया इतने हैं, अगर आप मान लो लेह लद्दाख के ऊपर पहाड़ों में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको सर्विस सेंटर मिलता है। अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है तो हमारा रोड साइड असिस्टेंस का प्रोग्राम है, आप वो ले लीजिए, तो आपकी कहीं भी ब्रेक डाउन होगा, कुछ भी होगा तो वो आपको असिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ सेम शोरूम, ठीक है, सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, बट अप्रोच इज डिफरेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वो बंदा है ना, वो बंदा अलग है, बोथ कस्टमर एज वेल एज द सेल्स पर्सन, ठीक है। और अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लोगों के लिए एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट क्रिएट कर देंगे ना, तो अगर वो डॉक्टर है ना यार, तो डॉक्टर साइकोलॉजिकली एक कंस्ट्रक्ट में वो डॉक्टर बन जाता है, ठीक है। थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर अलग हो सकता है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को गुस्सा कम आता है, वो अलग चीज है, लेकिन एक डॉक्टर का थॉट प्रोसेस एक तरीके का हो जाता है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट थॉट प्रोसेस एंड convert that into a strength of talking to him, understanding him, it will be very beneficial for you, ठीक है। मे बी आप पर्सनली भी मान लो किसी डॉक्टर से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो एज कम्पेयर टू कोई और बंदा है, वो कहता है नहीं यार मेरे को टीचर से बात करने में बड़ा मजा आता है, ये लोग से बात करो, थोड़ा समझो कि ये स्टूडेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में कैसा एकदम सर दर्द हो जाता है, बहुत ज्यादा मेंटल फटीग हो जाता है, राइट, तो मुझे उस टॉपिक पे बात करने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो आप लोग आपस में देखो किस प्रोफाइल से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, किस प्रोफाइल से बात करने में आपको ज्यादा मजा आता है, ठीक है, और आप अपने आप को उस प्रोफाइल का एक्सपर्ट बनाओ, और आपके पास जो डेटा आएगा वो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड ही आएगा, ताकि आप अपने काम को एंजॉय करो। और अगर आप वो फ्रस्ट्रेशन हट गया और वो एंजॉयमेंट आ गया ना अंदर, आपकी सेल्स पिच की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्स पिच गई साइड में, आप सीधे कनेक्शन बैठाओगे, ठीक है, सीधे कनेक्शन बैठाओगे। हाँ प्रशांत बोलो। सर जैसे मैन और वुमेन में दोनों में कन्वर्सेशन में बहुत डिफरेंस आता है सर। मैन क्या है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं सर, उनका मतलब ये है कि तुम क्या हो मेरे को बताओ और बात खत्म करो। और वुमेन है क्या है वो बात को खींच देते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं, अपन को लगता है कि बस अब सेल्स होगी, लेकिन आखिरी टाइम पे वो इधर उधर के बहाने बता के निकल जाते हैं। तो सर कैसे हम मैन से भी और ज्यादा कनेक्ट कैसे हो सकते हैं सर, और ज्यादा कैसे उनसे बात कर सकते हैं सर, उनको अपन ये एथलीट्स ये तो बता पाए कि अपन हम ये प्रोडक्ट है, मतलब ये कोर्स है,
कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो दे पाए सर उनको। हाँ, तो उसमें ना बहुत ही एक मतलब तरीके होते हैं जिसमें आप धीरे धीरे देखो, एज अ सेल्स पर्सन हमेशा ये क्या कहते हैं, ध्यान रखो कि 2 चीजें आपको करनी है। पहली चीज तो आपको ये करनी है कि यू हैव टू लिसन, सुनना है बहुत अच्छे से, ठीक है। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा क्या कहते हैं बेटर हो जाएगा। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग अ व्हाइट बोर्ड नाउ। इस पे थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को लिखना और करना। मेरे को बताना अगर आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा हो तो। दिख रहा है? ठीक है। यस 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 सर। यस सर। भाई एक चीज होती है सुनना, सुनने की बहुत क्षमता रखनी पड़ेगी यार, ठीक है। चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। सो वी विल नेवर यूज द टर्म मैन एंड वुमेन या ऐसा, वी विल ऑलवेज यूज द टर्म जेंट्स, जेंटलमैन एंड लेडीज, राइट। दैट इज अ बेटर वे टू एड्रेस these people, मतलब जेंडर स्पेसिफिक चीजें। यू कैन से मेल्स एंड फीमेल्स और जेंटलमैन एंड लेडीज। मोस्टली मेल फीमेल इज ऑल्सो फाइन बिकॉज, लेकिन मेन विमेन हम जल्दी बोलते नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं और उनकी कहानी नहीं समझोगे तब तक आप अपने आप को उस तरह या उस पोजीशन में नहीं ला पाओगे जिस पोजीशन से आप अपने प्रोडक्ट को उनसे जोड़ सको, ठीक है। अगेन सेलिंग में पिच जो होती है ना, जो हम ये स्क्रिप्ट लिख के देते हैं या जो पिच लिख करके देते हैं बॉस, वो सिर्फ नाम की होती है। वो सिर्फ आपको एक मदद करने के लिए होती है कि चलो ठीक है, अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो ये बोल देना। लेकिन एक्चुअल में जो सेलिंग होती है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप बात कैसे करते हो, ठीक है। नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट, नथिंग इज मतलब बिल्कुल रिटन इन स्टोन। ऐसा नहीं होता है कि अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा ही करो। ये सारी चीजें सिर्फ आपको मदद करने के लिए हैं, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हैं, ताकि आप जो है जो भी सामने बंदा है उसको टैकल कर पाओ, ठीक है। दूसरी चीज होती है लिसन। अगर आपने बातचीत सुन ली, समझ ली, तो आपको बड़े तरीके से ये बोलना पड़ेगा कि अच्छा, it was very good to know this, yeah, thank you so much for sharing this information. However, there are a few more things that I would like to tell you, right? So something like, I'll write this down. Thank you so much for this information. या फिर मान लो जैसे प्रशांत, कहाँ गया प्रशांत? ड्रॉप आउट कर गया क्या? यस सर, यस सर। अच्छा है, हाँ ठीक है। सो जैसे आप कह रहे हो ना प्रशांत की यार बड़ी लंबी चौड़ी कहानी खींच देती हैं, बड़ा अपना बताती रहती है इधर उधर का हिसाब किताब। सो थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। या फिर व्हाट यू कैन से इज थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। डिपेंड करता है कि क्या बात बोला है। जैसे उसने अरे मैं तो गई थी, मैंने ऐसे किया था लेकिन तब भी कुछ फायदा नहीं हुआ, और ये सब चीज़ों से पता नहीं कैसे होता है कि नहीं होता है, आप कैसे बताओगे, आप कैसे अलग हो, मेरे को तो बड़ी टेंशन रहती है, फलाना ढिमकाना, इसी तरह की बातें सुनते होगे ना। यस सर। उनका एक क्वेश्चन और हमेशा रहा करता है कि मतलब आप पैसे क्यों ले रहे हैं, मतलब और लोग तो ये सब फ्री पे कर रहे हैं। फिर हम उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपको ये सब सीरियल वाइज मिलेगा हमारे पास, आप वहाँ जाके देखते हैं, फ्री में देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वहाँ आपको सीरियल वाइज नहीं मिल पाता, तो वो आपके लिए उतना अगर अच्छा नहीं कोई भी बंदा ये बोलता है ना कि मेरे को पैसे क्यों ले रहे हो, उसको सबसे बढ़िया जवाब ये होता है कि मैम जो फ्री कंटेंट है ना, फ्री कंटेंट में आप जो पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आपको कोई ये नहीं बता पाता कि जो आपने समझा है वो आपने सही समझा है या गलत समझा है। यहां पर आपको एक्सपर्ट्स एडवाइस दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही अंडरस्टैंडिंग रहे, इस चीज का एफर्ट डाला जा रहा है, और इसी चीज के चार्ज है। आपको जो फ्री में, अगर मतलब तुम उनसे ये बोलो ना, अच्छा आप फ्री में देखते हो यूट्यूब में, आप क्या देखते हो मैम मुझे बताइए थोड़ा, अगेन ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। उनके साथ कॉन्वर्सेशन, आई नो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उनके साथ कॉन्वर्सेशन बढ़ाओ। अच्छा क्या देखते हो? अच्छा ये देखते हो? अच्छा जब आप ये देखते हो मैम तो आपको कैसा फील होता है? ठीक है, ये फील होता है, उतनी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर जरूरत पड़ जाती है उसे देखने की, या फिर जरूरत पड़ जाती है एक बार फिर से आप उसी स्टेट में आ जाते हो कि आपको लगता है यार
आई एम नॉट फीलिंग गुड नाउ, वो मेंटल जो डिस्टर्बेंस है वो वापस आ जाता है। तो मैम अगर आप अगेन यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो फ्री की चीज़ होती है ना वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, उसका इम्पैक्ट भी बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन यहाँ का जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन आपका ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है। आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो कोर्स मटेरियल मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेंगी, ठीक है। थिंग्स लाइक दैट। ओके, ठीक है। हाँ हर्ष, आपने हैंड रेस किया क्या? ओके शिवम, अच्छा हाँ बोलो हर्ष। शिवम आता हूँ आपके पास, आता हूँ। हाँ हाँ हर्ष बोलो। हाँ सर, ये आपने जो भी सारी बातें बताई वो बहुत ही बढ़िया, और पैसे वालों का क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करने ही वाला था, बट आपने उसके पहले आंसर दे दिया उसका। करेक्ट, ओके। हाँ शिवम। सर मैसेज आते हैं जैसे फ्री वाले कि आपको ये कोर्स फ्री में देना चाहिए, तो सर हम लोग एक तरह से ये बोल सकते हैं जैसे फ्री कंटेंट में उतना ही होता है जितना लिमिटेड, आप जितना फ्री रहता है आप लिमिटेड ही समझ पाएंगे। लेकिन जब आप जिस चीज के लिए पैसे देंगे तो उसके लिए आपको एक स्पेशलाइजेशन और एक अच्छा मेंटर मिलेगा जिससे आप इंटरेक्ट होंगे और ज्यादा चीज जानेंगे। बिल्कुल। देखो यार, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना टाइम और एफर्ट दे रहा हूँ, इट इज नॉट फॉर फ्री, एंड वी फील प्राउड अबाउट दिस फैक्ट। बस अगर मैं आपको टाइम और एफर्ट डाल के दे रहा हूं तो यू शुड फील गुड अबाउट द फैक्ट दैट मैंने टाइम और एफर्ट दिया है, एंड यू हैव द राइट टू आस्क फॉर अ फेयर कॉम्पनसेशन। यू हैव द राइट, आपको पूरा हक बनता है कि आप उसके एवज में एक जेन्युइन पे आउट, एक जेन्युइन पैसे का अमाउंट मांगे, ठीक है। मैं कहता हूं 100 लोगों से बात करोगे उसमें से 90% लोग मान लो नहीं समझेंगे, लेकिन वो जो 10% लोग समझेंगे ना, वो आपके रेगुलर कस्टमर और एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले, और ये वो कस्टमर्स हैं जो आपको और कस्टमर्स भी लाके देंगे, क्योंकि ये चेन बन करके चलती है। तो एज यू राइटली सेड शिवम, यही होता है कि पैसे के लिए कोई क्वेश्चन मार्क पूछे तो आप उनसे यही समझो कि अगर आप अभी फ्री में कर रहे हो उससे कितना फायदा है आपको, क्या बार बार वापस जाना पड़ता है, क्या मन में कभी सवाल आता है कि यार ये जो मैं सोच रही हूँ ये सही है या गलत है, इस सवाल का जवाब मिल पाता है आपको। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है तो उसका यही रीजन है कि मैम वो फ्री कंटेंट है, फ्री में उतना ही मिलेगा। लेकिन ये सवाल जो आपके मन में आता है ना, ये सवाल बहुत जरूरी है, और इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, और तभी आपको वो अल्टीमेट चीज मिलेगी जिस चीज के पीछे आप ढूंढ रहे हो, आप जिस वजह से आप ये फ्री वीडियो देखते हो, जिस वजह से आप ये वेबिनार अटेंड करते हो। आप हर बार जीरो से स्टार्ट करते हो और घूम फिर के वापस जीरो पे आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको हाथ पकड़ करके आगे तक 1 2 3 4 तक ले जाने के लिए कोई नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, और अगर वो एफर्ट और वो कहते हैं एक टीम हमने इकट्ठा करी है जो ये चीज करना चाह रही है, तो क्योंकि उनके भी मतलब वो इतना टाइम और एफर्ट दे रहे हैं तो उनको उसके बदले में कुछ तो एक फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि द सेम पर्सन जो अभी हमारे लिए काम कर रहा है वो कहीं और जाकर के कोई और नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर तो सबको चलाना है, पेट तो सबको पालना है, ठीक है। so we can be very proud of the fact that we are charging money, because there are people who are giving their time, effort, their sweat and blood for this particular cause। हाँ, हमारा काम बड़ा क्या कहते हैं, सुनने में लगता है कि आसान सा लगता होगा कुछ लोगों को, क्या है भाषण ही तो देना है या थोड़ी 4 पॉजिटिव चीजें ही तो बोलनी है, लेकिन उन 4 पॉजिटिव चीजों को कैसे बोलना है और किस तरह से वो आपके लिए फायदेमंद हो, ये चीज इंश्योर करना, इस चीज में तो स्किल लगती है, इस चीज में नॉलेज लगती है, और इस चीज में एफर्ट लगता है। सो इट इज फाइन। एंड इफ अगर एक पॉइंट के बाद कोई भी अगर ऐसा लगता है ना कि यार वो जबरदस्ती के तर्क दे रहा है, फिर वो जबरदस्ती की बहस कर रहा है, नहीं नहीं ऐसे तो ये हो जाता है, हो जाता है, देन इट इज ऑलवेज गुड टू लूज अ बैड कस्टमर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, कि मेक इट अ पॉइंट। ये अंग्रेजी में चाहे तो अपने घर में लिख लो इसे, ऑलवेज गुड टू, आपको दिखाई दे रहा है? ओके, नो सर, ऑलवेज गुड टू लूज अ बैड कस्टमर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कभी खराब मत फील करो कि यार इससे तो इतनी आगे तक बातचीत हो गई थी, ये कन्वर्ट करने ही वाला था कि यार इसने बैकआउट कर लिया। क्योंकि कई बार ये जो बहस करने वाले कस्टमर्स होते हैं ना, जो ये फालतू के तर्क देने वाले कस्टमर्स होते हैं ना, ये टाइम तो बहुत खाते हैं।
और लगता भी है कि यार अगर मैंने थोड़ा सा एफर्ट मार करके इनको कन्वर्ट कर लिया तो हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, सेल हो जाए, लेकिन यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा बैकआउट करते हैं। और ये आपके साथ नहीं होगा, ये लाइफ में ही ऐसे होंगे, इनका काम ही यही है, इनको बड़ा मजा आता है अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करने में, और ऐसे लोग तो भर भर के मिलेंगे स्पेशली इस पैंडेमिक में। यस सर। समझ रहे हो? सो लेट इट बी, it shouldn't demotivate you, it shouldn't dishearten you, right? Okay, I've used a couple of words here, I'm just going to put them in the chat. So demotivate और dishearten, मतलब आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे से हो नहीं रहा, ठीक है? सो दैट इज देयर। अगेन ये जो मनी वाला क्वेश्चन है इस पे भी वी विल practice, we will again work. Harsh, please make a note. All these FAQs, I want you to create a particular section of FAQs. What is FAQ? Can somebody tell me? FAQs. Does anybody know what does FAQ mean? Yes sir, frequently asked question. Exactly, frequently asked questions. So ये जो अभी प्रशांत ने जो एक इंसिडेंट शेयर करा, जो शिवम ने शेयर करा, ठीक है, एज अ टीम आप लोग मिल करके एक ये FAQs या फिर पॉइंट्स ऑफ कंसर्न जिसे बोलते हैं, पेन पॉइंट्स, नीड गैप्स, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर इट. व्हाट आर द चैलेंजेस, इट इज अनदर टर्म, चैलेंजेस फेस्ड, ठीक है, या फिर कंसर्न एरियाज, जो भी आपको इस डॉक्यूमेंट को बोलना हो, ठीक है, जस्ट टेल मी कि क्या क्या पिच में कहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस है, कहाँ कहाँ डील में प्रॉब्लम होती है, कहाँ कहाँ किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड व्हेन वंस वी आर थ्रू विद ऑल दीज FAQs, इसमें ऑब्वियसली ऐड होते जाएंगे, बट वी विल प्रिपेयर अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स to all of these problems so that everybody knows how to tackle these problems, and these documents will be floated throughout the sales team. Okay, so we will prepare what is known as a strategic document. Okay, so sure. ये काम again, if you want you can sort of assign it to somebody in your team or you can take it up all yourself. मैं कहता हर चीज तो खुद नहीं कर पाओगे हर्ष, तो assign it to somebody कि उसका बस यही काम है कि एक दिन बैठ करके तो केवल ये सोचे हमारा हर एक सेल्स का बंदा कि भैया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं, किस तरह के ऐसी सिचुएशंस होती हैं, सिनारियोज होते हैं जब मेरे को समझ नहीं आता कि अब मैं इसे आगे कैसे टैकल करूं, ठीक है? इंग्लिश वगैरह तो मैं वो बेटर होती रहेगी, लेकिन उससे पहले अपना थॉट प्रोसेस भी तो क्लियर करना है. जब दिमाग में क्लैरिटी होगी तो लैंग्वेज तो बेटर कर ही लेंगे उसके बाद. अगर दिमाग में थॉट वाइज हम क्लियर है हमें क्या बोलना है, तो इट इज ऑल जस्ट अबाउट कन्वर्टिंग दोज इनटू डिफरेंट लैंग्वेज, दैट्स इट, दैट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. और हमारा एंड ऑब्जेक्टिव जो है ना, हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है टू हैव बेटर सेल्स, राइट? चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, डजंट मैटर. हाँ, इंग्लिश में करेंगे तो प्रोफिशिएंसी बेटर होगी, लेकिन थॉट प्रोसेस क्लियर होना ज्यादा जरूरी है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है? श्योर सर. तो इसमें अभी हम एक काम कर सकते हैं कि आज के लिए हम इतना रख सकते हैं, आज के लिए हम इतना रख सकते हैं, और बाकी सारे हमारे जितने भी सेल्स वाले हैं उनको हम एक दिन का टाइम देते हैं कि उनकी जितनी भी ये FAQs की एक वो लिस्ट तैयार कर ले. हाँ. फिर उस लिस्ट को बाइफरकेट करके फिर हम उसके बाद के जो स्टेप हैं उनके आंसर्स और वो सब कुछ हम बैठ के आराम से डिस्कस कर सकते हैं. यस, ठीक है. तो आज का सेशन अगर समराइज करूं तो हमने 3 मेजर चीजों के ऊपर काम करना है. फर्स्ट इज द फैक्ट दैट यू विल हैव टू सी हाउ कैन यू गेट मोर डेटा अराउंड द प्रोफाइल्स ऑफ द कस्टमर्स दैट यू कम अक्रॉस. ठीक है. Secondly, with those profiles segmented, we will have to prepare targeted scripts. And third, within those targeted scripts, we also have to see कि what are those situations, क्योंकि ये जो आपके जो FAQs बनेंगे ना, ये FAQs भी फिर फर्दर सेगमेंट हो सकते हैं. हो सकता है कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस हो या कुछ स्पेसिफिक तरीके के कंसर्न्स हो जो सिर्फ डॉक्टर्स ही रेस करते हो, जो कुछ हो सकता है जो खाली मेल्स करते हो, फीमेल्स ना करते हो.
So there are these cohorts, these cuts on which you'll have to see. Okay? And that is how we can get more streamlined and more sharp in our approach towards the customers. Okay? So we can do this. So these are the 3 things which we should do over a period of 1 week. You guys have time from Monday till Friday, right? Harsh, try and get these. Let me know before sending out the questions. If you can just let me know what all questions are you planning to add. So in case, if I have some feedback on that, I can give that if the other teams are comfortable. If not, you can do it all by yourself as well. But the idea is that you should have a clear understanding of the profile of the customer himself. Another thing to be noted in these things is the age band. Very important to know the age of the person. समझ रहे हो, एक यूथ को कैसे अप्रोच करना है वर्सेस एक एजेड बंदे को कैसे अप्रोच करना है, वो भी बहुत अलग हो जाता है. श्योर सर. ठीक है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट. तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर एक बार जैसे तुम भी क्वेश्चंस या कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो मेरे को एक बार बता देना, सो दैट आई कैन गिव माय फीडबैक ऑन दैट. श्योर सर, वी विल एड इट. Right, perfect, great. Okay, so you're suggesting that we call it a day today? We done for the day? Harsh, are you saying that we can wrap up the session? Yeah, sure sir, and thank you sir for your valuable time. No, thank you so much. Yeah, it's going to be a long association, so it's going to be a mutual thing now. It's not just your company now, it's my company too, and I would like to see it grow and progress. Thank you sir. Okay, great. Thank you sir. Yeah, Thank you sir. Thank you so much. Thank you sir. You will get this uploaded on the Be Better channel, so I suggest you guys to subscribe the channel. I will share the link with it on the group that Prashant will create. Harsh will create, and we'll go on. Okay, Yes, Prashant, I see a raised hand here. I'm sorry if I have missed it earlier. कुछ कहना चाहते हो Prashant? No sir, no sir. अच्छा, हो गया ना, ठीक है, डन. ओके, परफेक्ट, ग्रेट. डू लेट मी नो हाउ डिड यू फील अबाउट द सेशन. अभी तक आपने बनाया है हर्ष की ग्रुप बन गया, बातचीत करते करते में बन गया, नहीं बन गया? नहीं सर, मैं अभी वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सेशन में हूँ और फिर उसके बाद खाना खा के मैं पूरा ये ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप का. राइट. सो एक चीज मैं जरूर चाहूंगा, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू कीप ऑन पोस्टिंग योर फीडबैक. Either you want to post it in the group, well and good. If you want to post it separately to me, maybe तुम चाहते हो कि सबके सामने नहीं बोलना है, या मेरा ये प्रॉब्लम है, या मुझे ये चीज डिस्कस करनी है, सबके सामने नहीं करना है, मेरे को अलग से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. बट आई वांट फीडबैक आफ्टर एवरी सेशन सो दैट वी कैन हेल्प एंड इम्प्रूव. श्योर सर. और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं अभी ग्रुप में सर को भी ऐड कर रहा हूँ. बिल्कुल. ताकि जो भी क्वेरीज हैं आप सीधा सर को पूछ लो, पर्सनल मैसेज कर लो. हमें पता चले कि आपकी गाड़ी कहाँ पर. अब ये अभी शर्माना नहीं है. अगर आप ये तो आपको ही दिक्कत आएगी, आपको ही कमीशन नहीं मिलेगा. इसमें कंपनी का लॉस नहीं है, आपका लॉस है. नहीं, दोनों का लॉस है बॉस. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. कंपनी का लॉस तो है, तुम्हारा लॉस तो है, ये दोनों का लॉस है. Yes sir. 2 सेकंड के लिए मैं भी सोचने पड़ गया कि ये शायद गलत सेंटेंस हो गया. इसी को अवेयरनेस बोले भाई. अवेयर रहना बहुत जरूरी है. और एज अ सेल्स पर्सन भी नहीं, इन जनरल लाइफ में बता रहा हूं मैं, जो शब्दों का प्रयोग है ना यार, इसी से सारा डिफरेंस बनता है. वेरी ट्रू सर. ग्रेट. चलो ठीक है फिर. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम. विल डू दिस नेक्स्ट वीकेंड देन. And Harsh, just a request here. Let's get done with the formalities regarding these sessions, right? Sure. Maybe get in touch with Aman or Abhishek, and let's get on with it. सर, आपने ईमेल को रिस्पॉन्ड कर दिया है ना? हाँ जी, वो कर दिया मैंने. ओके सर. तो हमारी टीम यहाँ पर चेक कर लेगी और फिर आपको जो भी फॉर्मेलिटीज है वो हम कंप्लीट कर लेंगे. डन. परफेक्ट. ओके, ग्रेट. थैंक यू शिवम, थैंक यू शिवांजलि, थैंक यू प्रशांत. थैंक यू सर. Shivanjali, you need to participate as well. I did not hear a word from you today, and that is not expected. अगली बार से आप ज्यादा बातचीत करोगे. इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूरी है. Yes sir. ठीक है जी. ओके. गुड नाइट एवरीवन. Okay, good night sir. गुड नाइट सर. Good night.